بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی تیجس طیارہ گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک۔ دبئی ایئر شو 2025 کے آخری دن بھارتی فضائیہ کا تیجس لڑاکا طیارہ کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ افسوسناک حادثہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ طیارہ زمین سے ٹکرا گیا اور آگ کا گولہ بن گیا۔ کالے دھوئیں کے گہرے بادل آسمان پر چھا گئے۔ بھارتی فضائیہ نے تصدیق کی کہ پائلٹ جان کی بازی ہار گیا اور ایجیکٹ کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ یہ تیجس کا دوسرا بڑا حادثہ ہے۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ تیجس حادثے کی وجہ پائلٹ کی غلطی قرار، ماہرین کا ابتدائی تجزیہ۔ ماہرین کے مطابق طیارہ کم اونچائی پر پیچیدہ کرتب کر رہا تھا جب وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ نیگیٹو جی منور کے دوران اونچائی کا درست اندازہ نہ ہو سکا، جس سے طیارہ ڈیپ سٹال میں چلا گیا۔ فلیٹ بائی وائر سسٹم میں خرابی کا امکان بہت کم ہے۔ یہ خالصتاً پائلٹ ایرر لگ رہا ہے۔ ویڈیو فوٹیج سے واضح ہے کہ طیارہ رول سے نکلنے کے فوراً بعد زمین سے ٹکرا گیا۔ بھارتی ایوی ایشن ایکسپرٹس بھی اسے انسانی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ کوئی تکنیکی خرابی نظر نہیں آئی۔ دبئی ایئر شو میں طیارہ گرنے کا واقعہ، بھارتیوں کی اپنی فضائیہ پر تنقید، ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ۔ جمعے کو دبئی ایئر شو کے دوران بھارت کا جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ بھارتی طیارہ ایروبیٹک اسٹنٹ کے دوران گرا۔ بھارتی ایئر فورس نے طیارہ گرنے اور پائلٹ کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بھارتی طیارہ گرنے کے بعد سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین نے اپنی فضائیہ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ایئر چیف کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کے شیئرز میں زبردست گراوٹ، تیجس بنانے والی کمپنی ایچ اے ایل کے شیئرز حادثے کے فوراً بعد تیزی سے گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ سرمایہ کاروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، کئی فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اس سے قبل رافیل طیاروں کے گرنے پر بھی ڈسالٹ کمپنی کے شیئرز گرے تھے۔ تیجس پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری تھی۔ اب ایکسپورٹ کے خوابوں کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ عالمی سطح پر بھارتی دفاعی صنعت کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی ایئر فورس چیف اور پائلٹ کی ٹریننگ پر کڑی تنقید۔ بھارتی شہری اور میڈیا ایئر فورس چیف پر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بہترین پائلٹ بھی ناکام کیوں ہوئے۔ تیجس کو دنیا کے سامنے بہترین دکھانے کا موقع تھا، الٹا شرمناک حادثہ پیش آ گیا۔ پائلٹ کی ٹریننگ اور تیاری پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ رافیل سمیت دیگر طیاروں کے حادثات یاد دلائے جا رہے ہیں۔ بھارتی ایئر چیف کو اب سخت سوالات کا سامنا ہے۔ ایئر شو میں موجود عالمی ماہرین اور ایئر فورسز کے سامنے بھارت کی ساکھ کو ٹھیس پہنچی ہے۔ تیجس حادثہ بھارت کی دفاعی صلاحیتوں پر نئے سوالات، پاکستان کا JF-17 تھنڈر بہتر ثابت۔ یہ حادثہ بھارتی فضائیہ کی تیاری اور تیجس کی قابلیت پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کا JF-17 تھنڈر اسی ایئر شو میں نئی ڈیلز کر رہا ہے۔ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ بھارت کا دفاعی بجٹ پاکستان سے 8 گنا زیادہ، پھر بھی ایسے حادثات بار بار پیش آ رہے ہیں۔ تیجس کی ایکسپورٹ امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب کون خریدار اعتماد کرے گا؟ پاکستان کم وسائل میں بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، عالمی سطح پر برتری واضح ہو گئی۔ روس یوکرین جنگ کے اختتام کی راہ ہموار، ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا امن منصوبہ سامنے آ گیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جامع پیس پلان پیش کر دیا، جس کے تحت روس اور یوکرین کے درمیان 4 سالہ جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پلان کے مطابق یوکرین کو کئی اہم شہر خالی کرنا ہوں گے، جبکہ روس اپنے فوجی حملے روکنے پر آمادہ ہوگا۔ نئی تجاویز میں یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو مستقل طور پر روکنے کی شرط بھی شامل ہے۔ امریکہ اور یورپ اس ڈیل کی ضمانت دیں گے، جبکہ 100 دن کے اندر یوکرین میں نئے الیکشن ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ عالمی سیاست میں ایک بڑا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔
यूक्रेन बड़े इलाकों से दस्तबरदार होने को तैयार, रूस मजीद कंट्रोल हासिल करेगा। अमन मुआहदे के तहत रूस को पहले से कब्जे में मौजूद इलाकों के अलावा मजीद चंद सनती शहरों का कंट्रोल भी मिल सकता है। यूक्रेन की जबान और दफाई पॉलिसी पर भी रूस के मुतालबात को अहमियत दी जा रही है। रूस का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन एटमी ताकत नहीं बनेगा और ना नेटो में शामिल होगा। यूक्रेनी अफवाज के मुहासरे के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है, जिसने मुज़ाकरात को तेज़ कर दिया है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये रूस की बड़ी स्ट्रेटजिक कामयाबी होगी। यूरोप और अमेरिका पीछे हटने पर मजबूर, रूस आलमी स्टेज पर मजबूत पोजीशन में। 4 साल की जंग में माशी दबाव ने यूरोप और अमेरिका की कमजोरियां बेनकाब कर दी हैं। महंगी गैस, कमज़ोर सनत और दफाई नाकामियों ने यूरोपीय ममालिक को पीछे धकेल दिया। रूस पर लगने वाली पाबंदियां अब हटने की सिमत बढ़ रही हैं, जिससे मास्को मजीद मजबूत होगा। जंग के दौरान दुनिया ने देखा कि रूस माशी व अस्करी दबाव के बावजूद डटा रहा। तज्जियाकारों के मुताबिक रूस इस जंग से पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनकर निकल रहा है। चीन और रूस नई सुपर पावर जोड़ी के तौर पर उभर रहे हैं। रूस की कामयाबी ने चीन के लिए भी आलमी सतह पर जगह मजीद मजबूत कर दी। माहरीन का ख्याल है कि अगर यूक्रेन में मगरब नाकाम रहा तो ताइवान के मामले पर चीन को रोकना मजीद मुश्किल हो जाएगा। चीनी माशी कुव्वत खसूसन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बर्तरी ने यूरोप को हिला कर रख दिया। रूस और चीन एक दूसरे की सफारती व दफाई हमायत में पहले से कहीं ज़्यादा मुतहिद नज़र आ रहे हैं। ये जुड़वां ताकतें आलमी सियासत में मगरब के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। यूक्रेन का सियासी बाब तब्दील होने वाला है। 100 दिन में इलेक्शन और ज़ेलेंस्की का दौर ख़त्म। पीस प्लान के मुताबिक यूक्रेन में 100 दिन के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। इससे सदर ज़ेलेंस्की का इक़्तिदार मुमकिन तौर पर ख़त्म हो जाएगा, ताहम उन्हें मुकम्मल एमनेस्टी दी जाएगी। माहदे की सूरत में तमाम जंगी मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। यूक्रेन की फ़ौज को रूस के साथ नए दफाई असूलों के तहत काम करना होगा। सियासी तज्ज़ियाकार इसे यूक्रेन की तारीख का सबसे बड़ा सियासी मोड़ करार दे रहे हैं। अफ़गान तालिबान वज़ीर का नई दिल्ली दौरा, पाकिस्तान के लिए तशवीश। अफ़गानिस्तान के वज़ीर तजारत ने नई दिल्ली का दौरा किया। ये 5 रोज़ा दौरा तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए है। पाक अफ़गान ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से तालिबान भारत की तरफ झुक रहे हैं। पाकिस्तान को ख़दशे है कि भारत अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पाकिस्तान की एयर स्पेस बंदिश, एयर इंडिया को अरबों डॉलर का नुकसान। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर एयर स्पेस की बंदिश 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसकी वजह से एयर इंडिया की फ़्लाइट लंबे रास्ते अख्तियार कर रही है। वक्त और ईंधन दोनों ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, मुसाफिर भी परेशान हैं। दूसरी एयरलाइंस पाकिस्तान के रास्ते इस्तेमाल करके सस्ता और तेज़ सफ़र कर रही हैं। एयर इंडिया को सालाना करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। एयर इंडिया की चीन से मदद की अपील, सिंकियानक एयर स्पेस खोलने की दरख्वास्त। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से कहा है कि चीन से सिंकियानक का हसास एयर स्पेस खोला जाए। इससे फ़्लाइट्स का रास्ता मुख्तसर हो जाएगा और नुकसान कम होगा। चीन का ये इलाका फ़ौजी तौर पर बहुत अहम है, वहाँ सिविल तैयारों को इजाज़त नहीं मिलती। भारत चीन ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, मगर चीन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। अगर इजाज़त ना मिली तो एयर इंडिया की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। अफगानिस्तान में भारत की सरगर्मियां पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। भारत और तालिबान के ताल्लुकात तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे सफारत खाना दोबारा खुल गया। अफगान वजीरों के दौरे और तजारत के मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान को खदशा है कि भारत अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी करवा सकता है। पाक अफगान सरहद पर तनाव बढ़ रहा है। तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि सफारती और फौजी तौर पर एहतियात से मामला संभाले। जंगी अखराजात के सबब बहरान, सैकड़ों इसराइली फौजी मुस्ताफ़ी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और वज़ीर दिफ़ा ने
फौज में बड़ी तादाद में इस्तीफों के इंकशाफ के बाद फौरी रद्दअमल देते हुए अपनी अदालती समाअत मुख्तसर करने की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त की वजह हंगामी सिक्योरिटी सूरत हाल बताई जा रही है। बाद अज़ां मालूम हुआ है कि दोनों ने जनूबी शाम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान नेतन्याहू ने ऐसे बयानात भी जारी करवाए जिनका मकसद दाखिली फौजी बहरान से तवज्जो हटाना मालूम होता है। ये दौरा ऐसे वक्त में सामने आया जब वजारत खजाना की जानिब से जंगी अखराजात पूरे करने के लिए माली कटौतियों और फौजी एहलकारों की मरात में कमी ने फौज के अंदर शदीद बेचैनी पैदा कर दी। हम एक मुनसफ़ाना और मतवाज़न जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि उनका मुल्क मुज़ाकरात और एक मुनसफ़ाना और मतवाज़न मुआहदे तक पहुँचने के लिए आमादा है। उनके मुताबिक ईरान ने इसराइल के साथ जंग से अहम सबक सीखे हैं और अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। बरतानवी जरीदे इकोनमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची का कहना था कि मसला यह है कि जब अमरीकी मुआहदे की बात करते हैं तो वो दरअसल अपनी शराइत मनवाना चाहते हैं और हम पहले ही इस रवैये का तजर्बा कर चुके हैं। बरतानिया के इमिग्रेशन निज़ाम में बड़ी तब्दीली, मुस्तकिल रहाइश के लिए 30 साल का इंतज़ार। बरतानिया ने कानूनी इमिग्रेशन निज़ाम में निस्फ सदी बाद सबसे बड़ी इस्लाहात का ऐलान करते हुए मुस्तकिल रहाइश के लिए सख्त शराइत आयद कर दी। शराइत के तहत गैर कानूनी तारकिन वतन और सरकारी सहूलतों पर इन्हसार करने वालों को मुस्तकिल रहाइश के लिए अब 20 से 30 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक ये यूरोप का सबसे सख्त मॉडल होगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।